Bismillahirrahmanirrahim. In our previous lecture, we have discussed about the abnormality related to with cardiovascular system. We complete the cardiac problem. Now we start with the peripheral vascular disorders. The vascular system is consist of artery, arterioles, vein, venules, and capillaries. The adequate perfusion, oxygenate, and the nourishment of the body tissues depend upon the functioning of the cardiovascular system. The adequate blood flow is depend upon the efficient pumping action of the heart, patented and responsive blood vessel, and the adequate circulating blood volume. These you have studied in physiology. And the factor that affect the rate and adequacy of the blood flow, there is a nervous system activity, blood viscosity, metabolic need of the tissues. The normal anatomy and the physiology of the cardiovascular system consists of the vascular system consists of the two interdependent system. There is a right side of the body, there is a right side of the heart and the left side of the heart. The right side oxygenate the right side of the heart pump the deoxygenated blood from the whole of the body towards the lungs, while the left side of the heart pump the oxygenated blood through aorta to whole of the body. In this diagram you can see how the pulmonary artery carry the deoxygenated blood in the lungs, and from the lungs after oxygenation it through the pulmonary vein it carry the oxygenated blood to aorta in whole of the bodies. The vascular system consists of the arteries that carry the oxygenated blood, capillaries in between the exchange of gases and nutrient take place. There is an arterioles and venules immediately adjacent to the capillaries, and there is another system in the body, that is a lymphatic system. In this diagram you can see the anatomy of the vascular system. There is a femoral artery, deep femoral artery, and the other arteries. The artery and the arterioles, the characteristics of the arteries, they are the thick wall structure that carry the blood from the heart to the tissue. The aorta is the diameter of approximately 25 mm. The arteries are divided into the smaller arteries that are about 4 mm in, and that is called the arterioles. In this diagram you can see the mean diameter of the artery, and further there is an arterioles. As the arteries move towards the arterioles and capillaries, their diameter is reduced and their thickness is also reduced. The arteries and arteriole consist of the three layers you studied in the physiology, outer intima, media और adventitia layers. एंड ये सारी करेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी हुई है कि इनमें क्या क्या. अब ये आपको करेक्टरिस्टिक्स पता होंगी तो एबनॉर्मेलिटी आपको पता चलेगी. ठीक है. सो व्हाट हाउ द डायमीटर्स ऑफ द ब्लड वेसल आर मेजर्ड, दे आर मेजर्ड थ्रू द स्मूथ मसल्स. एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द मसल ऑफ द कार्डिक मसल कैसे मेजर कर सकते हैं? थ्रू केमिकल, हार्मोनल एंड द नर्वस सिस्टम. So the other blood vascular system is the capillaries. The capillaries wall and the leg, the smooth muscle and adventitia composed of a single layer of endothelial cell where the exchange of take place. In this diagram you can see the diameter of the capillaries. Vein and venules, wall of the veins are thinner and considered less muscular. Wall of average vein amount of about 10% of the vein आ जाता है. So the veins have the thin and less musculature than is advantage or not. Why not? So their veins have the advantage that the thin and the less musculature of the vein allow these walls to distend more than the arteries आ जाते हैं. ठीक है. What estimate the vein to consider through the sympathetic nervous system, innervate the vein musculature and can stimulate the vasoconstriction. In this diagram you can see the contraction of the skeletal muscle in extremities through the sympathetic system. In the vein there is some valves are present in the veins. For example, in this diagram you can see there are some veins have a valve to prevent the backflow of the blood. There is another system in the body, there is a lymphatic system, that is a thin wall vessel similar to the blood capillary collect the lymphatic fluid from the tissue and the organ transport the fluid to the venous circulation. There is a lymphatic system vessel. There is a two system in the body. We collect the lymph from the body. There is a thoracic duct and the right lymphatic duct. The right lymphatic duct convey the lymph primarily from the right side of the head, neck, thorax and the upper limb, while the thoracic duct convey the remainder of the body. In this diagram you can see how the right lymphatic duct carry the right side of the body and the thoracic duct carry the other part of the body. So now we start how we assess the vascular system. In the arms we can assess the arm size, venous part, and also look for the edema for coloration, and the hand and arm, also the finger, hand, arms and the temperature of the body. Also the capillary refill time. जब आपके पास पेशेंट किसी
वास्कुलर प्रॉब्लम के साथ आता है। तो ये चीज़ें आपने असेस करनी है हमारे पास, ठीक है। यानी आपने उसका स्किन का कलर देखना है, कैपिलरी रिफिल का टाइम देखना है, रेडियल पर्स, अल्नर पर्स, ब्रेकियल पर्स, ये सारी चीज़ें आपने इसका टेस्ट करना है। और एक इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, एलन टेस्ट। एलन टेस्ट कैसे हमने परफॉर्म करना है कि जो हमारे पास रेडियल और अल्नर आर्टरीज आ रही है इसको थोड़ी देर के लिए आपने प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे जो हमारे पास पाम ऑफ हैंड है इसका कलर जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे जो कलर है वो नॉर्मल आ जाएगा। अब जो कलर जो नॉर्मल आएगा वो विदन 15 सेकेंड आना चाहिए। अगर विदन 15 सेकेंड नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि इसमें जो हमारे पास वास्कुलर सिस्टम है इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब फिर इसी तरह लेग की भी असेसमेंट करनी है कि लेग का कलर आपने देखना है हमारे पास, ठीक है। लेग्स फ्रॉम द टर्फ टू द ग्राउंड चेक करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर चेक करना है, लीजन कोई अल्सर वगैरह तो नहीं है, एडीमा चेक करना है हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह लेग को चेक करने के लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसे हमारे पास ह्यूमन साइन टेस्ट कहते हैं। ह्यूमन साइन टेस्ट में आपने किस तरह परफॉर्म करना है कि पर्सन को बिल्कुल स्ट्रेट जो आते हैं वो हमारे पास बेड पे लिटा देना आपने, और पेशेंट की एक आपने हैंड पेशेंट की थाई के साथ सपोर्ट करना है हमारे पास, ठीक है। और साथ में पेशेंट के फुट को डोर्सल फ्लैग करना है। जब भी आप डोर्सल फ्लैग करेंगे तो हमारे पास पेशेंट को क्या होगा, हमारे पास रिजल्टिंग डीप काफ पेन इंडिकेटिंग द पॉजिटिव। तो करेंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। अगर बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है तो इसका मतलब पेशेंट का जो ह्यूमन टेस्ट है वो पॉजिटिव आया हुआ हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो स्पेशल अदर टेस्ट है जो हम चेक करते हैं हमारे आर्टरी वेन्स की इनसफिशिएंसी के लिए, इससे पोजीशन चेंज आ जाती है। और फिर एंकल ब्रेकियल टेस्ट जो होते हैं वो चेक करते हैं। एंकल ब्रेकियल इंडेक्स किस तरह पेश करना है कि सबसे ज़्यादा आपने प्रेशर जो हमारे पास हाई एंकल प्रेशर है, एंकल का प्रेशर आपने मेजर कर लेना कि हमारे पास कितना, और फिर ब्रेकियल प्रेशर जैसे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि हाई हमारे पास एंकल प्रेशर हमारे पास कितना है हमारे पास, ठीक है। एंकल प्रेशर 125 है हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास ब्रेकियल प्रेशर है वो कितना है हमारे पास 125 130 है हमारे पास, ठीक है। तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो जो आएगा हमारे पास, इसको डिवाइड करके तो वो हमारे पास क्या होगा, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स आ जाता है। नॉर्मल जो एंकल ब्रेकियल इंडेक्स होता है वो हमारे पास दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। फिर हम मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट करते हैं हमारे पास, इसमें क्या कहते हैं जो हमारे पास आपकी काफ मसल है उनकी वेन्स को आपने कंप्रेस करना है, फील फॉर द वेव। नो वेव फेल्ट आ जाती है, कम्पैक्ट वेन है। अगर वेव फेल्ट होती है तो उसका मतलब इनकम्पैक्ट वेन है हमारे पास, ठीक है। यानी क्या करना है तो हमें आपको अगर जब कंप्रेस करते हैं हमारे पास, ठीक है, काफ मसल नीचे आपके जो हमारे पास नी जॉइंट है इसके नीचे आप जो वेन जा रही है अगर इसको कंप्रेस करेंगे हमारे पास, ठीक है। कंप्रेस करने के बाद अगर वो वेन वहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है, और आपको वेव शेप में नज़र आ रही है तो इसका मतलब आपकी कोई ना कोई वास्कुलर प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास ट्रेंडलबर्ग साइन है। ट्रेंडलबर्ग साइन क्या चीज़ है हमारे पास, यूजुअली इंडिकेट द वीकनेस इन द हिप अबडक्टर मसल, ग्लूटियल मसल एंड द ग्लूटियस मिनिमस मसल आ जाते हैं। फिर इसके अलावा इंटरमिटेंट क्लॉडिएशन है। पेशेंट विद द पेन इन द लेग इज इंड्यूस्ड बाय द एक्सरसाइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरीज, यानी ऐसे पेशेंट जिसमें वैसे ही हमारे पास स्ट्रेट लेटने से या पेन होती है तो हमारे पास एक्सरसाइज करेंगे तो इससे पेन रिलीव हो जाए, तो इसे हमारे पास इंटरमिटेंट क्लॉडिएशन कहते हैं हमारे पास, ठीक है। इंटरमिटेंट क्लॉडिएशन इज अ मस्कुलर क्रैम्प टाइप पेन इन द एक्सट्रीमिटीज constantly reproduced with the same degree of exercise and activity relieved by the test आ जाता है। यानी बहुत ज़्यादा आप चलते हैं हमारे पास, ठीक है, वॉक करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आप कर लिया तो इसकी वजह से जो आपके काफ मसल होते हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें पेन स्टार्ट हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो वो रिलीव कैसे होती है कि आप पेशेंट क्या करें, अच्छे से मसाज करें, हमारा रेस्ट करें तो इससे रिलीव हो जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी क्या, कॉज बाय द इनएबिलिटी ऑफ आर्टरी सिस्टम टू प्रोवाइड द एडुकेट ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इन द फेस ऑफ द इंक्रीज डिमांड फॉर द न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास, ठीक है। जब अकॉर्डिंग टू डिमांड जो नीड नहीं मिलती है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी हमारे पास रेस्ट एंड देयर इज एन डिक्रीज द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द मसल अंदर वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो रेस्ट पेन में परसिस्टेंट पेन इन द फोरफुट व्हेन द पेशेंट इज रेस्टिंग आर इंडिकेट द स्वेयर डिग्री ऑफ द आर्टरी इनसफिशिएंसी एंड द क्रिटिकल स्टेट ऑफ द इस्कीमिया। अगर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाए फिर भी उसके हमारे पास जो फुट है उसमें पेन है तो उसका मतलब वहाँ पे जो ब्लड है इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। द साइट ऑफ द आर्टरी डिजीज कैन बी रिड्यूस बाय द लोकेशन ऑफ द क्लॉडिएशन, यानी फिर हमने चेक करना है कि उस वेन्स को प्रेस करके आर्टरीज को प्रेस करके रखना है हमारे पास, ठीक है, कि कहाँ पे पेन हो रही है। द काफ पेन में बी कम्प्लीट द रिड्यूस ब्लड फ्लो थ्रू द सुपरफिशियल फेमोरल पोप्लिटेल आर्टरी पोप्लिटेल एंड वर्सेस द पेन इन द हिप एंड बटक में बी रिजल्ट फ्रॉम रिड्यूस द ब्लड फ्लो इनटू द एब्डोमिनल आर्टरी। यानी आपको सब पहले नॉर्मल एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि कौन सी वेन कहाँ से गुजरी है हमारे पास, ठीक है। और फिर वहाँ पे इसको कंप्रेस करके देखना तो फिर आपको पता चलेगा इस पर ये वाली प्रॉब्लम है हमारे पास। ऐसे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास अगर पेशेंट के हमारे पास थाई में पेन है तो हमारे पास इस तरह फेमरल आर्टरी और इस आर्टरी में प्रॉब्लम होगी हमारे पास, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने स्किन का कलर और चेंज जो आएगा हमारे पास, टेम्परेचर चेक करना है हमारे पास, ठीक है, स्किन पेलर तो नहीं है, फिर रबर रेडिश ब्लू डिस्कलरेशन तो नहीं है, साइनोसिस है वो चेक करना है हमारे पास, ठीक है। दोनों हैंड को आपस में कंपेयर करना है हमारे पास, ठीक है, और दोनों फिंगर्स को आपस में कंपेयर करना है। इसके अलावा
हेयर चेक करने हैं, हमारे पे ब्रिटल नेल है, ड्राई है, स्केलिंग है, एट्रोफी और अल्सरेशन को चेक करने हैं। फिर चेक करना है कि एडीमा तो नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है। फिर एडीमा को चेक करना है कि हमारे पास पूरे दोनों आर्म बायलेटरल यूनिलेटरल तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। फिर गैंग्रीन, फिर बॉडी का ऐसा पार्ट देखना है कि हमारे पास वहाँ पर नेक्रोसिस या गैंग्रीन तो नहीं डेवलप हो रहा। ये एडीमा इस तरह, और एडीमा की मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन भी है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अगर पेशेंट में कोई वास्कुलर डिसऑर्डर है तो पेशेंट में नेक्रोसिस होगा, और नेक्रोसिस फर्दर जो होती है वो गैंग्रीन में कर, गैंग्रीन द डेड ऑफ द टिश्यू इन द पार्ट ऑफ द बॉडी फॉल स्वेलिंग, इस तरह की गैंग्रीन भी डिफरेंट तरह की टाइप्स है। फिर पल्स को आपने चेक करना है हमारे पास, ठीक है। क्वालिटी ऑफ पल्स का चेक करना है हमारे पास, ठीक है। एब्सेंस ऑफ द पल्स सिनोसिस का चेक करना है। पल्स को कैसे आप चेक करते हैं, पैल्पेट बायलेटरल स्टीमर, दोनों पल्सों की दोनों साइड को चेक करना है। रेट और रिदम को भी चेक करना है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह ये पल नॉर्मल पड़ा हुआ है कि हमारे पास बॉडी के कौन कौन से पार्ट है, कहाँ से आप पल्स को आप चेक कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। अब जब हमने आर्टिकल वेनस इनसफिशिएंट करेक्टर्स को चेक करना है तो आपने क्या क्या चेक करना है, जो पीछे हमने पढ़ा, पेन है, पल्स है, स्किन कलर को आपने चेक करना है। अल्सर तो नहीं बना हुआ, अल्सर है तो इसका लोकेशन क्या है, पेन क्या है, तो ये सारी आर्टरीज के वेन में ये करेक्टरिस्टिक्स आपने चेक करने हैं। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कर डिफरेंट तरह के हमारे पास प्रॉब्लम डायग्नोस्टिक टेस्ट कराती है। अगर वास्कुलर प्रॉब्लम तो कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे, इसमें हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड फ्लो स्टडी कराएंगे, डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, एक्सरसाइज टेस्टिंग, CTA करवाएंगे, MRI करवाएंगे, एंजियोग्राफी, और फिर हमारे पास लम्फ एंजियोग्राफी करवाएंगे, लम्फेंसिंटोग्राफी टेस्ट करवाएंगे। डॉपलर अल्ट्रासाउंड फ्लो टेस्ट में क्या होगा हमारे पास, ठीक है, इसमें हम डॉपलर के जरिए से अल्ट्रासाउंड वेन्स का चेक करना है हमारे पास, जहाँ पे आपको वैन पे कहीं ना कोई थॉम्बस पड़ा हुआ है हमारे पास, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो आपको नजर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास CBW डॉपर में एंकल ब्रेकल इंडेक्स को चेक करते हैं, रेशियो ऑफ द एंकल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर टू द आर्म सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ जाता है। इसमें हम एंकल का ब्लड प्रेशर से सिस्टोलिक आर्म के ब्लड प्रेशर से कंपेयर करते हैं हमारे पास, ठीक है। मेजरिंग द एंकल सिस्टोलिक प्रेशर विद द कंटिन्यूस वेव डॉपलर प्रॉप के जरिए से आप चेक कर लेते हो हमारे पास, ठीक है। एंकल ब्रेंकल्स जो होती है वो हमारे पास स्पाइन पोजीशन में, जैसे मैंने आपको पहले पेशेंट को आपने स्पाइन पोजीशन पे लटा देना हमारे पास, ठीक है। एंकल को और फिर आर्म को दोनों को चेक करना है हमारे पास, ठीक है। और फिर देखना कि इसमें कितना डिफरेंस आया, दोनों पे जितना डिफरेंस है उसके बराबर इसका रेशो होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। जैसे कि हमारे पास राइट ब्रेकल जो है 160 है हमारे पास, ठीक है। लेफ्ट ब्रेकल 120 है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह राइट पोस्टीरियर टिबियल कितना है, तो ए हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर फॉर द ईच ब्रेकर एंड द हाईएस्ट ब्रेकल प्रेशर जो एक जो होती है उसको आपने मेजर करना है हमारे पास, ठीक है। कंप्यूट द इसको हमारे पास जब ऐड करेंगे तो हमारे पास हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर फॉर द ईच एंकल 80 मिलीमीटर ऑफ द मर्की 120 शुड बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.5 एंकल ब्रेकल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नॉर्मल जो होता है वो हमारे पास कितना, अगर हमारे पास आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज एंकल विथ हेल्दी पर्सन इज द सेम एज द स्लाइटली हायर देन ऑफ द ब्रेंकल सिस्टोलिक, अगर रिजल्टिंग इज देन ABA कितना होगा हमारे पास 1, यानी अगर हमारे पास दोनों का रेशियो जो है 1 है तो मतलब ये नॉर्मल है हमारे पास, नो आर्टरीज इनसफिशिएंसी इसमें नहीं है। लेकिन अगर 0.95 से 0.5 तक में आएंगे तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई आर्टरीज में वेन्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि और एंकल और ब्रेकियल जो हमारे पास इंडेक्स होता है वो हमारे पास 1 to 1 का रेशियो होती है हमारे पास, ठीक है। फिर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे जिसमें यूज टू मेजर द ब्रेकियल प्रेशर को मेजर करने के, फिर एक्सरसाइज टेस्टिंग करवाएंगे, पेशेंट को एक्सरसाइज करवाएंगे, एक्सरसाइज करवा के देखेंगे कि हमारे पास पेशेंट का कितना ब्लड प्रेशर रेज करता है, कितना कम होता है हमारे पास, ठीक है, और कितना वो एक्सरसाइज को बियर कर सकते हैं। फिर डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी के कम्बिनेशन ऑफ द डॉपलर टेक्नोलॉजी विद पल्स इको इमेजेस करवाएंगे। तो इन टेस्ट के आपको नाम पता होने चाहिए क्या है, तो एक गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस द वेनस थ्रोम्बोसिस, इसके जरिए से हमें पता चलता है कि वेन्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। रिटर्न लेवल एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ है मेजर करने के लिए इस्तेमाल करता है। डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड नॉन इन्वेसिव मेथड है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास रिक्वायर नो पेशेंट प्रेपरेशन की कोई ज़रूरत इसमें नहीं होती। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि सिंपल आप जिस तरह अल्ट्रासाउंड का प्रेगनेंसी में कहते हैं वैसे ही अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो इसके जरिए से आपको पता चल जाएगा कहाँ का वेन्स में ब्लॉकेज है हमारे पास, ठीक है। फिर CT स्कैन करवाएंगे हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास CT स्कैन कराएंगे, फिर हमारे पास CTA करवाएंगे, स्पाइरल CT स्कैन है, रैपिड इंटरवेंशन फ्यूजन ऑफ द कंट्रास्ट एजेंट आ जाता है हमारे पास। फिर हमारे पास इसका MRI करवाएंगे, अगर हमारे पास इसमें क्लियर ना हो तो ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। फिर एंजियोग्राफी है मे बी यूज टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ ओक्लूसिव आर्टरी डिजीज, एंजियोग्राफी इसके लिए हम करवा देंगे। लेकिन जब एंजियोग्राफी करेंगे इसका कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, जब एंजियोग्राफी करेंगे तो पेशेंट को कोई ना कोई डाई देंगे, तो डाई की वजह से पेशेंट को एलर्जी भी हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग भी हो सकती है, तो ये सारे जो साइड इफेक्ट है इसका आपने ख्याल रखना है हमारे पास। फिर एयर सोमोग्राफी पलिथ्समोग्राफी भी करवाएंगे, इज अ न्यूमेटिक पैलेसिमोग्राफी डिजाइनेटेड फॉर द नॉन इन्वेसिव मेजरिंग वीनस फंक्शन एंड द एब्सोल्यूट वॉल्यूम चेंज इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज। ये क्या करते हैं, लोअर लेग्स वगैरह में जो वेनस का प्रेशर है इसको चेक करने के लिए आप यूज़ करते हो हमारे पास, ठीक है। ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमारे पास किस तरह हमारे पास वीनस प्रेशर को चेक करने के लिए हम इसको मेजर करते हैं। फिर
इसको चेक करते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर कंट्रास्ट पिलियोग्राफी आ जाती है, आल्सो नो द वीनोग्राफी इन्वॉल्व इंजेक्टिंग द रेडियोग्राफ कंट्रास्ट मीडिया इन द वीनस सिस्टम थ्रू द डोर्सल फुट वेन आ जाती है। तो इसके डिफरेंट तरह के मेथड है हमारे पास, जिसमें वीनस के में प्रेशर चेक करते हैं, कहीं में उसकी कोलेजन को चेक करते हैं। फिर लोअर लिम्ब प्लेबोग्राफी है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, कंट्रास्ट मटेरियल फिल द डीप वेन ऑफ द लेग एंड पासिस थ्रू द परफोरेट ब्रांचेस के जरिए से गुजरती है। एंड सुपरफिशियल वेन कहते हैं वेन डायलेटेड इन द रीजन ऑफ द विस्कोसिटी जहाँ पे होती है। फिर हमारे पास लैम्बा एंजियोग्राफी है, ब्लू डाई इज इंजेक्टेड बिटवीन द टर्व इनटू द वेबिंग के जरिए से। फिर यहाँ पे अगर कोई वेन ब्लॉक है तो हमें पता चल जाएगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फोशेंटेनोग्राफी इज द टेक्निक यूज टू मेजर डिटरमिन द जेनिटल लिम्फ नोड आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। एक लिम्फ नोड आ जाए, यानी इसमें लिम्फ नोड में कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकेज हुई है तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास लिम्फो सेंटीग्राफी करवाएंगे, सिस्टेंटीग्राफी करवाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये प्रोसीजर ऐसा आपको पता होने चाहिए, एक दफ़ा पढ़ लें सारे प्रोसीजर है क्या और किस तरह ये आप करवाएंगे हमारे पास, ठीक है। और अगर हमारे पास लिम्फ कहीं ना कहीं किसी वजह से ब्लॉकेज हो जाए तो लिम्फ के ब्लॉकेज होने की वजह से जो डिजीज़ इसे हमारे पास लिम्फेडिमा या फिर लिपिडिमा कहते हैं। लिम्फेडिमा क्या हमारे पास बायलेटरल लोअर लिम्फ लिम्फेडिमा होता है, जबकि लिपिडिमा इज द लोअर लिम्फ नॉट द इनवर्स शोल्डरिंग अफेक्ट अबव द एंकल ड्यू टू द स्पेयरिंग ऑफ द फीट होने की वजह से होते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि लिम्फेडिमा और लिपिडिमा में क्या क्या डिफरेंस है हमारे पास, ठीक। ये स्टेज 1 2, फिर आस्ता आस्ता पेशेंट के मसल्स भी इंक्रीज करते जाते हैं और साथ साथ पेशेंट की लिम्फ नोड भी करते रहते हैं। दैट्स अबाउट द वास्कुलर डिसऑर्डर, जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द वास्कुलर सिस्टम एंड देयर एबनॉर्मैलिटी। थैंक यू।